Good morning to all of you. Today we are going to start our chapter 6. 6 की introduction कर रहे हैं आज. That is your lines and angles, right? आपका chapter 6 है lines and angles. That is the geometry part. आप लोगों के 9th क्लास में बहुत सारा part maths का geometry में आता है, ठीक है, जिसमें से आपका 5th chapter CBSE ने कट कर दिया है. So 5th chapter we do not have to do. We are doing here 6th chapter, that is lines and angles. Before we start the chapter, first of all, let me see what are the basic terms of our geometry. Okay, I have written on the board. Your first term is line segment. Line segment, what is line segment? It is the part of a line which has both a starting point and an ending point. लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और जिसका एंडिंग पॉइंट भी होता है. देन अ रे, लाइन सेगमेंट आप स्टार्ट भी करते हो और उसका एंड भी करते हो. पॉइंट से हम उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग शो करते हैं. अ रे इज व्हाट which has only the starting point and no ending point. This arrow represents that this line will go up to infinity. This ray will go up to infinity. It can be extended up to infinity, right? So this is the ray. Collinear points. Points collinear means co-linear. Co means same. Linear means line per. The points which lie on the same line are called collinear points. For example, if I have taken this line segment, this is A, this is B, this is C, and this is D. So here I can say that the points A, B, C, and D, they are on the same line. On the same line means they are collinear, right? Next of your term is angle. Angle is formed by two rays. When two rays originate from the same point. जब आपकी दो रेज एक ही पॉइंट से निकलती हैं, then we say that the angle is formed, right? These rays are called the arms of the angle, right? And if I take this point as A और इधर मैं point ले रही हूँ B, this OA and OB, these will be called the arms of this angle. And what will be point O here? Point O will be the vertex. Yes. So O point will be the vertex of angle AOB, right? After angle, we are coming on complementary angles. What are complementary angles? Complementary angles are the angles which have their sum 90 degree. Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree, right? So if one of the angle of these complementary angles is 50 degree, what will be the second angle? Because their sum is 90 degree, so the second angle will be I'm checking your answers, waiting for your answers. Complementary angles, sum is yes, it will be 40 degree. If one of the angle is 50, the other will be 40. If one of the angle is 45, other will also be 45. If one of the angle is 30, the other one will be 60 degree, right? Supplementary angles. The two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree. Okay, their sum is 180 degree. So if one of the angle is 80 degree, the other angle will be 100, right? Yes, if one of the angle is 80, the other one will be 100 degree. चलिए, next point है linear pair of angles. Linear pair क्या होते हैं? The two angles are said to form a linear pair if there is a ray which stands on a line. अगर आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड हो रही है, then we say that linear pair is formed. This is a line. At any point, if a ray is there, right? So we have two angles here. Their sum will be 180 degree. They will be called linear pair. For the angles
टू मेक लीनियर पेयर देयर मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपके पास अगर ये रे ना हो, आपके पास अगर सिर्फ ये लाइन हो एंड दिस इज द पॉइंट, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? दिस एंगल इज 180 डिग्री। एंड व्हाट इज दिस एंगल कॉल्ड? दिस एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। क्यों स्ट्रेट एंगल बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, अगर ये एंगल टोटल 180 डिग्री का है, मैं इस एंगल के दो पार्ट्स कर देती हूँ, तो भी ये दोनों एंगल्स मिलाकर तब भी उतने के उतने ही रहेंगे, 180 ही रहेंगे। इफ आई divide this angle into three parts, 1, 2 and 3, then also their sum will be 180 degree, क्योंकि ये तो अब भी उतने का उतना है, आप उसको चाहे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं एक और रे बना देती हूँ, then also the angles will give you the sum 180 डिग्री, क्योंकि ये अभी भी एंगल वही का वही है। सेमी सर्कल आपको नजर आ रहा है, this semicircle is being divided into many parts, but their sum will remain same, that is 180 डिग्री। तो जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, उसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे, ठीक है, उन सब का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंड वी से दैट दे फॉर्म लीनियर पेयर। एंड the next point is vertically opposite angles. This we have already done in class 7. आपके पास vertically opposite, if you have taken two lines and these lines are intersecting, ठीक है, straight lines होनी चाहिए, intersect करनी चाहिए, then these angles will be equal to each other। ठीक है, ये एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो जितने डिग्री का ये होगा उतने डिग्री का ही ये होगा, राइट। और जितने डिग्री का आपका ये एंगल होगा, द सेम विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, राइट। सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अभी जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इन दिस एक्सरसाइज वी विल टॉक ओनली अबाउट टू एंगल्स। फर्स्ट इज लीनियर पेयर एंड अदर इज this vertically opposite angles। अच्छा, अब before I start the theorem or the exercise, अभी exercise तो हम आज start नहीं करेंगे। First of all we are doing its introduction। देखो, आप अब पढ़ेंगे theorem। Have you ever heard about any theorem yet? आज तक आपने किसी theorem का नाम सुना है? Yes or no? सुना है तो कौन सी? सबने अभी तक एक ही थ्योरम का नाम सुना है, और कौन सी थ्योरम है वो? यस, ऑल हैव हर्ड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या होती है? यस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो, हमने फिफ्थ चैप्टर नहीं किया, अगर हम करते तो उसमें हमारी कुछ टर्म्स आती हैं, बेसिक टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लेटिंग यू नो व्हाट आर दे। थ्योरम होती है, देखो हमारे पास एक वर्ड होता है थ्योरम, और एक वर्ड होता है एक्सियम। ठीक है, थ्योरम एंड एक्सियम। थ्योरम एक मैथ्स में जो स्टेटमेंट होती है, उसे हम तब थ्योरम बोलते हैं इफ वी कैन प्रूव इट। अगर हम किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ थ्योरम। ठीक है, अगर हम किसी मैथ्स की स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकते और हमने उसको एज इट इज ट्रू मान लिया है, देन दैट इज कॉल्ड एन एक्सियम। फॉर एग्जाम्पल, 2+2 कितना होता है? 2+2 कितना होता है? सबको पता है, 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो कि 2+2 4 होता है? हमें सबको पता है कि 2+2 4 होता है। ये है हमारा एक्सियम। जो रिजल्ट्स हमारे एज इट इज ले लिए जाते हैं। हम सबको पता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में क्या आता है वो सबको पता है, राइट। सो ये हमारे होते हैं एक्सियम, जिनको हमने प्रूव नहीं करना, जिनको हमने एज इट इज ट्रू मान लिया है, राइट। अभी आपने एक किया है कि अगर मैं ये लाइन लेती हूँ, इस लाइन के ऊपर मैं एक और रे बना देती हूँ, तो इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये होता है आपका एक्सियम।
ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो का सम 180 है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है तो है, राइट। सो दिस इज एन एक्सियोम। और थ्योरम क्या होती है? थ्योरम ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रूव करते हैं with the help of other results, with the help of other axioms and other theorems। ठीक है, उसको बोलते हैं आप थ्योरम। अब इस चैप्टर में आपकी बहुत सारी थ्योरम्स आएंगी, राइट। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनमें भी आपको लिखा हुआ हो शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, वो सारी आपकी थ्योरम्स होंगी, राइट। ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है शो दैट, ठीक है, या फिर प्रूव दैट, देन दैट इज अ थ्योरम। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल फाइंड द वैल्यू, तो वो आपका सिंपल क्वेश्चन होता है, वो थ्योरम नहीं होती है। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन और थ्योरम के बीच का डिफरेंस कर रहे हैं कि हमें देख के पता कैसे चलेगा कौन सा थ्योरम है और कौन सा क्वेश्चन है, राइट। और थ्योरम जो होती है ना, उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स फिक्स होते हैं। पॉइंट्स कौन से होते हैं कि उसमें सबसे पहले आपने लिखना होता है गिवन। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स फिक्स हैं कि आपके तीन पार्ट्स तो होते ही होते हैं। गिवन, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सी स्टेटमेंट भी अगर है तो आपने उसमें उसमें आपको क्या गिवन है, आप क्या यूज कर सकते हो, वो आपने गिवन में लिखना होता है। देन वी हैव सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड टू प्रूव। ठीक है, PROVE। टू प्रूव मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव करना क्या है। ठीक है, वो आप लिखोगे। उसके बाद आप करते हो प्रूफ, कि चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यहाँ पे उसको कैसे प्रूव कर रहे हैं, दैट मेथड कम्स, दैट प्रोसीजर वी राइट है। ठीक है, तो ये होती है थ्योरम। आपके तीन पार्ट्स, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में एक और पार्ट भी आ जाता है बीच में, दैट इज कंस्ट्रक्शन। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमारे सीधे सीधे आंसर्स नहीं आते हैं, हमें उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, कोई एंगल ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं करने वाली हूँ फर्स्ट थ्योरम, और वो थ्योरम कौन सी है? दैट थ्योरम इज वर्टिकली, आपका पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसमें देखो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आपके पास आ गया प्रूव दैट। प्रूव दैट से आपको पता चल गया कि ये क्या है, इट इज अ थ्योरम। ठीक है, अगर ये थ्योरम है तो हम लिखेंगे इसमें क्या गिवन है, क्या हमने प्रूव करना है। सो लेट मी राइट फर्स्ट गिवन। अब गिवन में क्या लिखूं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या लिखें, व्हाट इज गिवन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, टू प्रूव दे आर इक्वल। इसको इस तरह से नहीं, हम इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। देखो, इन्होंने बोला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पहले बनाए तो सही कि वो होते कौन से हैं। सो फॉर दैट वी विल हैव टू टेक टू लाइंस। हमने ये दो लाइंस ले ली। ठीक है, ये मेरी लाइन है, लेट दिस इज AB एंड दिस इज CD एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, राइट। अब यहाँ पर आपके कौन से एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये हैं आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सिमिलरली हमारे पास ये और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, मैं इनको नेम दे देती हूँ। Let me give the names as 1, let this is 2, this is 3 and this is 4। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ कि मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे नहीं, मुझे गिवन है ये दो लाइंस, राइट। सो टू लाइंस, कौन कौन सी, I am given with two lines and I have given them the name as AB and CD, which intersect at O। ठीक है, ये मुझे गिवन है, राइट। नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव,
मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से वर्टिकली एंगल्स हमें नजर आ रहे हैं, कौन से वर्टिकली एंगल्स हैं? एक तो एंगल 1 और 3, ये वर्टिकली इक्वल हैं, तो मुझे प्रूव करना है कि 1 और 3 ये इक्वल हैं। ठीक है, और दूसरा पेयर कौन सा प्रूव करना है? आई हैव टू प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये आपने नोट डाउन करना है, राइट? यस, बिल्कुल 2 एंड 4। उसके बाद हमने लिख लिया कि हमारा क्या गिवन है, हमने क्या प्रूव करना है। थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है? प्रूफ, क्योंकि इसमें अभी हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा आएंगे प्रूफ पर। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए जरा, इसको मैं इरेज करने वाली हूँ। इफ यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट यू मे, और यू मे गेट इट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग आई विल सेंड। ठीक है, ओके, सो मैं इसको इरेज करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज आई नीड ओनली द फिगर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। मुझे जो प्रूव करना है दैट इज 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4। ओके, उसके लिए अब एक बार ये बता दो दैट मैंने एक बार ये लाइन ली है, आई हैव टेकन ओनली दिस लाइन, दिस इज ए बी। ठीक है, यहाँ पर एंगल 1 और 2 कैसे एंगल्स हैं? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन जब लगाते हैं, एक रे जब लगाते हैं, तो जो दो एंगल्स बनते हैं वो कैसे एंगल्स होते हैं? दे आर लीनियर पेयर। और अगर ये लीनियर पेयर हैं तो इनका सम कितना होगा? देयर सम विल बी 180 डिग्री। ठीक है, चलो इसी को मैं लिख रही हूं एज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका रीजन क्या है कि ये कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, ये मैंने इसका रीजन लिख दिया दैट दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। ठीक है, इसको हम दे देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। आप इसको सामने लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि स्पेस, चलो यहाँ लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली एक बार तो मैंने ये वाली लाइन ली है ए बी, दूसरी बार भी मैं ये सी डी लाइन ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने इस वाली नीचे वाली रे को छुपा दिया, राइट? अब बताइए कौन से दो एंगल्स लीनियर पेयर नजर आ रहे हैं आपको? नाउ यू हैव एंगल 2 and angle 3 making linear pairs, so what we can write? We can write angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree। देखिए, अब हमने कौन सी स्ट्रेट लाइन ली है? सी डी। एज सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, so what can I write? CD हमने स्ट्रेट लाइन ली थी, तो 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका भी रीजन है LP मींस लीनियर पेयर। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम देखें अगर 1 और 2 इक्वेशन से व्हाट कैन वी राइट? देखो, इक्वेशन 1 में ये दोनों का सम भी 180 के इक्वल है, 2 और 3 का सम भी 180 के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन से व्हाट कैन आई राइट? This is equal to 180, this is equal to 180. If A is equal to B, B is equal to C, can we write A is equal to C? अगर A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि A और C इक्वल हैं? What can I write from 1 and 2? Let me know. अगर ये भी 180, वो भी 180, so can I write 1 plus 2 is equal to 2 plus 3? 1 plus 2 is equal to 2 plus 3। ठीक है, इक्वल टू 180 में नहीं लिख रही, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, मैंने इतना ही ले लिया। ठीक है, ओके। नाउ इस एंगल 2 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, व्हाट आई विल गेट? 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एंगल 2 इधर आके हो जाएगा -2। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन एरर जो आप लोग करोगे, आप करोगे 3 - 2 हो गया 1। ठीक है, 3 - 2 1 नहीं करना है, दीज आर द नेम्स ऑफ द एंगल। आप इसमें से इसको कभी भी माइनस नहीं करेंगे, ये उस एंगल का नाम है। ठीक है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि प्रिया में से पूर्ति माइनस हो गई तो
सिया बच गई। नेम में से आप नेम माइनस नहीं कर सकते ना, सो 3 में से 2 माइनस नहीं होगा। यस, बट 2 एंगल 2 माइनस एंगल 2 ये दोनों हो गए आपके कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए? 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक आपका पेयर प्रूव हो गया। दूसरा हम लिख देंगे, दूसरा अब हमें दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप इसके बाद सीधा लिख सकते हो सिमिलरली, पैरेलली, पैरेलल लाइंस बनाकर ly। सिमिलरली एंगल कौन सा रह गया? 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो जो हमने प्रूव करना था वो कर दिया। उसके बाद हम लिख देंगे इसमें हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में थ्योरम में हर जगह पे हमें ये लिखना होता है हेंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया, राइट? So we are going to use these two results, that adjacent angles are linear pairs, they are supplementary. The sum of linear pairs is 180 degree, and vertically opposite angles are equal. We are going to use this result to prove the question of your exercise 6.1. So let me start with the first question of 6.1. You are given a figure, and in this figure a line is given A, B, this point is O, and from this point we have one more line I am saying, yes, this is one more line and its name is CD, and one more ray is given OE, right? Now you are given if angle AOC plus BOE is 70 degree. AOC, this angle, BOE, this angle. अगर मैं इनको नाम दे दूं, ये 1 है, ये 2 है, so we are given angle 1 plus angle 2 is equal to 70 degree. ठीक है, and we are given angle BOD is equal to 40 degree. BOD ये वाला एंगल है मेरे पास, let this is angle 3. Angle 3 is equal to 40 degree, right? Now what I have to find out? I have to find the value of angle BOE and reflex angle COE. BOE मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स एंगल 2 मुझे फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो एंगल COE है उसको अगर आप 360 में से माइनस कर देते हो तो रिफ्लेक्स एंगल आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एंगल ले रही हूँ, मेरे पास ये कोई एंगल है 70 डिग्री का, तो रिफ्लेक्स क्या होगा? 360 में से 70 माइनस मींस दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ये भी COE, सपोज मैंने इसको भी नाम COE दिया है, दिस एंगल इज 70 डिग्री, है ये भी COE एंगल, ठीक है, बट दिस इज द रिफ्लेक्स। ठीक है, जो एक्यूट है उसको 360 में से माइनस करके आपका रिफ्लेक्स एंगल आएगा, तो 70 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 290। ये तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। चलिए लेट वी कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पर आते हैं। 1 + 2 70 है, इन दोनों का सम 70 है, ये 40 है। हाउ विल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2? बताइए, क्या आपको यहाँ पर कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नजर आ रहे हैं? कैन यू सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है? यस वी हैव। कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 3। इफ 1 and 3 आर इक्वल, 1 and 2 नहीं है बेटा, 1 and 3 है। इफ 1 and 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दे विल बी इक्वल। ठीक है, ओके, सो वी आर डूइंग द सॉल्यूशन। ये हमारी थ्योरम नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो सॉल्यूशन मैं इसका यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। वी आर गिवन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 70 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और 3 एंगल कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। Why 1 is equal to 3? You have to write the reason also. Angle 1 is equal to angle 3 because they are vertically opposite
एंगल्स, राइट? सो आपके पास एंगल 1 कितने डिग्री का हो गया? 40 डिग्री का। 340 था इसलिए 140 हो गया, बट इन दोनों का सम 70 है, ये 40 है, तो एंगल 2 कितने डिग्री का हो गया? इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। वी आर पुटिंग एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल गेट 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? 70 माइनस 40, दैट इज 30 डिग्री। सो यू आर गेटिंग एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। एक आंसर आ गया, बट वी स्टिल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल COE. To find out the reflex angle COE, we need to find out the value of angle COE first. COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? COE इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। 250, 290, 250 या 290? बाइलिनियर पेयर, बिल्कुल बाइलिनियर पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे? 1, इसको भी नाम दे देते हैं एंगल 4, 1 2 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, आई एम इरेजिंग दिस एंड नाउ आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल COE. एंगल 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर, ठीक है। 1 प्लस 2 कितने डिग्री का गिवन था? 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो वी विल हैव एंगल 4 इज इक्वल टू 180 minus 70, that is 110 degree, ठीक है। If this is 110, what will be the value of reflex angle COE? Reflex angle COE आपको बोला है reflex find out करना है, तो 360 में से आप COE को माइनस कर दीजिए। So this will be 360 और COE की वैल्यू हमने क्या निकाली है? COE is angle 4 and angle 4 we have taken out 110 degree. So 360 minus 110 will be 250, ठीक है। So you got two answers here. पहले तो आपने एंगल BOE की वैल्यू निकालनी थी, एंगल 2 फाइंड आउट करना था। So your answer is BOE is equal to 30 degree and angle reflex angle COE. Reflex angle COE, this is equal to 250 degree. These two are the answers of this question.